The sums which we gonna do today, they are most important sum. पेज 156 पर चले जाएंगे. पेज 156 पर चले जाएंगे. I want you to start with illustration 24 and अपने important sum की list में उसे please add कर देंगे. Illustration 24. I am doing it on board. Let's start. The information of the number of accidents in 10 days on a particular road is given below. Find the mean and the standard deviation. Do you know how to find the mean and standard deviation? Yes. I trust you. Find the percentage of days. This is important. Find the percentage of days, the number of accidents lying between x bar plus or minus s. So beta let's begin. लिखा जाए चलो. Number of accidents जिसे हम लिखेंगे xi and number of days that is fi. 1 2 3 4 5 accidents. This is 2 3 4 sorry 2 3 3 double 1. What's the total of frequency? 10. But first of all tell me, हमको ऐसा बोला है कि find mean and standard deviation. Now mean बोले तो we have to find x bar and standard deviation is SD. But looking at this information, raise your hand. Looking at this information, raise your hand. Now close your books. We'll do it together. Close your books. x bar के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे? x bar के लिए raise your hand. Raise your hand. हिमानी. x bar के लिए the formula will be sigma fi xi upon n. Better tell me which formula for standard deviation. Raise your hand. Standard deviation. Gagan. Sigma fi xi square upon n fi xi square upon n minus sigma fi xi upon n whole square. fi xi upon n the whole square. So better what is my first step? What's my first step? So get me the answer for fi xi and then fi xi square. Now fi xi square हम कैसे करेंगे? fi xi into xi. तो पहले लेकिन fi xi कर लेते हैं. चलो 2 1s are 2 3 2s are 6 9 4 total 26 fi xi square. So can I say that is fi xi into xi? But pay the attention. Fi xi into xi. 2 1s are 2 6 2s are 9 3s are 4 4s are and 5 5s are 25. What's the total? 80. बेटा ये जो 82 है उसके सामने लिखो this is fi xi square and this is fi xi and this is my n. Okay. Now fi xi 26 upon 10 that becomes 2.6. But any doubt how I calculated fi xi and then fi xi square? पक्की बात. बेटा fi xi square कितना है? 82 upon 10 minus 26 upon 10 the whole is square. बेटा 82 is 8.2 minus 2.6 का whole is square. 8.2 minus 6.76. So beta that is root 1.44. That is 1.2 is the final answer. X bar 2.6 and standard deviation 1.2.
बेटा आई एम होपफुल कि तुम्हें इतना आता था ढूंढने को कि नहीं. Sure. Now the main sum begins. But all attention, drop your pens. All attention on the board. They are saying find the percentage of observation lying between x bar plus or minus standard deviation. Find the percentage of observation lying between x bar plus or minus s. तो बेटा x बार प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन अगर मैं करूं तो कितना आएगा? 2.6 प्लस 1.2 that's 3.8. अरे x बार माइनस s अगर मैं करूं तो 2.6 माइनस 1.2 1.4. तो मुझे सबसे पहले ढूंढना है कि कितने ऑब्जर्वेशन 1.4 से लेके 3.8 तक आते हैं. हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर बिटवीन 1.4 से लेके 3.8? देखो यहां पर लिखा है ना, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइंग बिटवीन x बार प्लस और माइनस s. द ऑब्जर्वेशन लाइंग बिटवीन x बार प्लस और माइनस s. तो x बार प्लस करा तो मेरे को एक अपर लिमिट मिली, x बार माइनस s करा तो मुझे लोअर लिमिट मिली. तो ये दोनों लिमिट के बीच में कितने ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं? जरा हेल्प करो. 1 आ रहा है ब्रज 1.4 में 1 आ रहे नबड़ू. कैन आई से 2 3 4? नो. तो कैन आई से ये दो ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं 2 और 3? 2 और 3. अब 2 कितनी बार आया? 3 कितनी बार आया? तो मुझे क्या ढूंढना है? परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस. आई डोंट नीड टू फाइंड द ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन तो आई गयो 2 और 3. अब लिमिट नहीं बच्चे गया, ऑब्जर्वेशन आवे 2 और 3. बट आई वांट परसेंटेज. तो वो परसेंटेज कैसे मिलेगा? जरा यहां ध्यान. परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 कितनी बार आया? 3 बार. और ये भी व्हाट्स द टोटल? 10 into 100. बिकॉज परसेंटेज अगर ढूंढना है सो इनटू. तो बेटा 3 plus 3 क्या करा पता चला? लेकिन ये 3 plus 3 क्या करा पता चला? नहीं. बेटा 2 number 2 is coming 3 times, number 3 is also coming. तो 6 divide by 10 into 100. तो 60% of the observations are lying between x bar plus or minus standard deviation. बेटा खबर पड़ी शू करियो ना. First we found the limit. From there we took the observation and then adding up the frequency, dividing it by the total, I got my ultimate percentage. Yes, sir. Do it. Then I'm giving you one more sum, similar types. In that I'm not going to find x bar and standard deviation. You will find that. कर लोगे? The percentage of observations lying between 1.4 से 3.8 are 2 and 3. But one more similar types.
Go on to page 169. Beta, go on to page number 169. I want you to do sum number 2. Come on. Start with sum number 2. Again, find the percentage of observation lying between the limits x bar plus or minus s from the following credit days to the merchant. But I am copying the sum, but then trust me, I am not going to find x bar and standard deviation that you are supposed to do it. Okay? Will you do that? Never. बेटा स्टार्ट्स कर दो. But are you using the same formula? But if you are using the same formula तो थोड़े calculations lengthy हो जाएंगे. लेकिन घबराओ मत, तुम्हारे पास कैलकुलेटर है. बड़ा मुझे क्यों लग रहा है मेरे को करना पड़ेगा ये. बेटा मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है. बेटा तुम्हें आ रही है? हैं? Beta, how many have got the answer x bar? 15.535. 15.535. So take it as 15.54. 15.535. Take it as 15.54. बड़ा गजब. स्टैंडर्ड डिविएशन ना हो पाएगा.
बेटा थोड़े और भी सम करने हैं आज, क्या हो क्या रहा है, जल्दी करो। सर आपके साथ सम किया 2 मिनट में हो रहा है, हम खुद से कर रहे हैं 20 मिनट्स। शाबाश बेटा। स्टैंडर्ड डिविएशन तो बता दो। 1.40 1.4 1.45 बेटा 1.45 बेटा स्टैंडर्ड डिविएशन इज 1.45। स्टैंडर्ड डिविएशन इज 1.45। अरे बोलो भाई। अच्छा मुझे फ्रीक्वेंसी का टोटल दो ना। 200। ओके ओके ओके। अच्छा बेटा एनीबॉडी स्टिल डिडंट गेट दिस आंसर? बिकॉज आगे का स्टेप मैं कर रहा हूं। ये कितनों के आ गए आंसर? एक्स बार और स्टैंडर्ड डिविएशन कितनों का आ गया है? ये बेटा लिख डाला है, लिख डाला है। सर लिख डालने में ज्यादा मजा आती है। अगेन percentage of observation lying between x bar plus or minus s। तो x bar कितना है मेरा? 15.54 plus 1.45 16.99 16.99। પછી x bar minus s 15.54 minus 1.45 14.09। तो बेटा अगर मैं अपनी लिमिट देखें तो 14.09 से लेके 16.99 तक आ रहा है। सो कहना से दो नंबर आ रहे हैं 15 और 16। बेटा 15 और 16 ये दो नंबर आ रहे हैं। तो परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर मैं करूं तो 65 प्लस 45 डिवाइड बाई 200 इंटू 100। तो बेटा 65 प्लस 45 इज 110 अपॉन 200 इंटू 100 55%। बेटा इट्स 55%। बेटा yes or no? बेटा yes or no? I'm proud of you. बेटा क्वेश्चन नंबर 3 उसी के नीचे है, देखो जरा। पेंसिल उठाओ, पेंसिल उठाओ। बेटा ये वाला कॉपी मार लो पहले। हाँ शाबाश। 55% डाला बेटा, 55% आया। बेटा कुछ तो बोल दो यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में जरा पढ़ेंगे, दिया क्या है? फाइंड अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन and also find its relative measure। खाली देखो ऐसा ही लिखा है, find appropriate measure of dispersion। सम देखो कैसा दिया है, less than 10, then 10 to 20, 20, 30, 30, 40 and 40 above, ऐसा दिया है। अब मुझे ढूंढना क्या है?
अप्रोप्रिएट मेजर। अब बेटा अप्रोप्रिएट मेजर अगर मेरे को बोले हैं ढूंढने के लिए, मैं तुम्हारे सामने बेटा केबीसी खेल रहा हूं, मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूं, तुम मुझे बताओ ये कौन सा ढूंढने को बोल रहे हैं। सीधा सीधा नहीं बोला है क्या ढूंढना है। दे आर जस्ट सेइंग व्हाट, दे आर जस्ट सेइंग व्हाट, अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सो पहला ऑप्शन मैं तुमको बोलता हूं रेंज। क्या इसमें रेंज ढूंढना है, जरा चेक करके बताओ। रेंज, रेंज क्यों रेंज फाइंड आउट नहीं कर सकते इसमें? हाईएस्ट अबव 40 कहां जाके रुक रहा है, क्या पता चल रहा है? लेस देन 10 कहां कितना जाके लेस है पता है, तो रेंज तो ना फाइंड आउट करी सकिए। પછી मीन डिविएशन जरा चेक करो। मीन डिविएशन बेटा मीन डिविएशन में अपने को एक्स बार ढूंढना पड़े ना। एक्स बार के लिए क्या फॉर्मूला लगे? पहलो वालो क्लास जरा जो कि वो लख्यो छे लेस देन, तो उसकी मिड वैल्यू ही तुमको नहीं मिलेगी। छेल्ला वाला क्लास लिखा है अबाव, तो उसकी भी तुम्हें मिड वैल्यू ही नहीं मिलेगी। तो मीन डिविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं। क्वार्टाइल डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन यस, उसको हम ढूंढ सकते हैं। देखो आराम से, लेस देन और मोर देन अगर मेरे को दिया है उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वार्टाइल्स हम आराम से ढूंढ लेंगे। तो बेटा व्हाट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी? अरे लेकिन वो आंसर हमने निकाला कैसे? सबको चेक करके। कैन आई से लेस देन और अबव जब ऐसे ओपन एंडेड क्लासेस दिए हो ना, तो व्हाट आर वी सपोज्ड टू फाइंड? लिख लो, पेंसिल से नोट लिख लो, पेंसिल से वो नोट लिख लो। The most appropriate measure of dispersion, the most appropriate measure of dispersion when open-ended classes are given, the most appropriate measure of dispersion when open-ended classes are given is quartile deviation। तो बेटा तुम्हें यहां पर quartile deviation भी ढूंढना है, coefficient of quartile deviation भी फाइंड करना है। What are you supposed to find? Quartile deviation and that's your homework। यहाँ नहीं करना है, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। क्या से ये वाला जो सम दिया है ना लेस देन और अबव 40, उसमें हम स्टैंडर्ड डिविएशन भी नहीं फाइंड आउट कर सकते, बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए भी फॉर्मूला क्या है? fi(x(2) अपॉन n माइनस fi(xi) अपॉन n द वापस वो पहले वाले और छेले वाले क्लास का xi वो अपने को नहीं मिलेगा, इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन भी हम फाइंड नहीं कर सकते। एक ही वस्तु खाली फाइंड कर सकते हो, दैट इज बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलो। अपनी नोटबुक में सम लिखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखो अपने को ये दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या है? लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30। बेटा ये होता क्या है यार? बेटा कुछ तो बता दो। चलो साथ में शुरू करते हैं। क्या लिखा है? हेल्प मी बेटा, हेल्प मी। लेस देन 10 પછી 20 30 પછી बेटा वो जो दिया है ना दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। गधो क्या है बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? 5 17 47 ओके बेटा हमको लेस देन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। बेटा अपने छोटे से दिमाग पे ज्यादा जोर लगाओ, छोटे से दिमाग पे
चैप्टर नंबर 2 पर हम जाते हैं बेटा, फ्लैशबैक। सर कुछ याद नहीं आ रहा, साला कुछ याद नहीं आ रहा है। डू यू रिमेम्बर कि अगर ऐसा लेस देन बाउंड्री पॉइंट्स दे देते तो हम उसको ओरिजिनल क्लास और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हम उस पर से फाइंड करते थे? नहीं। रेज योर हैंड, मेरा पहला क्लास कौन सा बनेगा? इट विल बी 0 to 10। मेरा पहला क्लास बनेगा। बहुत बढ़िया, स्कॉलर बैच। नेक्स्ट इज 20, 30, 40, 50, 60 અને 60 to 70। बेटा फ्रीक्वेंसी कैसे मिलती थी? 10 divided by 2। नो, गधो। पहला वाला 5 माइनस क्या है ऊपर? सो पहली फ्रीक्वेंसी आएगी 5 माइनस 0, क्योंकि 5 के ऊपर कुछ ना है, 0 है। देन 17 माइनस 5 12। बेटा ये तुम गलती कर रहे हो, सारे पहले 17 माइनस 5 बोल रहे थे, गलत है। पहला शुरू कहां से करेंगे? 5 से ही। उसके ऊपर क्या है तुम्हारे मार्क्स, इसलिए वो 5 माइनस 0। देन 47 माइनस 17 30। 35 कौन बोल रहा है साला? 30। 92 माइनस 47 45। 142 माइनस 92 50। 179 माइनस 142 30। and 200 minus 179 21। बेटा अब जरा सम में देखो, ढूंढना क्या है? बेटा स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढना आता है? होमवर्क। स्टैंडर्ड डिविएशन होमवर्क में फाइंड आउट करो। बेटा यहां वो सब ढूंढ के टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, क्या बोलते हो? बेटा क्वेश्चन 5 हमने कर लिया, जरा चेक्स करो। पक्का हमने कर लिया है? बेटा क्वेश्चन नंबर 6 वापस, वापस देखो, लेस देन दिया है वापस, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है वापस। बेटा मेरे को क्लास और फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके दो, चलो फटाफट अभी क्वेश्चन नंबर 6 चालू करो। बेटा वी आर गिवन विद लेस देन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटा तो वापस मेरा पहला क्लास कौन सा बनेगा? अरे नहीं भाई, बेटा लेस देन ની સામે 12 છે ને, તો એ ના ચાલે। મારે એ બાઉન્ડ્રી પોઈન્ટ સામેથી મારો ક્લાસ ચાલુ કરવાનો જેની સામે ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી 0 હોય। તો અહીંયા એટલે આપણે એક સ્ટેપ ઉપર જવાનું, એટલે 100 નો ગેપ છે, તો 100 ના ગેપ થી 0, तो 0 to 100 that will be my। सीधा 100 से क्लास ना शुरू हो। 100 के सामने अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती तो मैं 100 से क्लास मेरा शुरू कर देता, लेकिन एनी सामे 12 છે એટલે 100 થી ક્લાસ ના ચાલુ થાય તો બળદ। The class will begin from 0 to 100। But my first class 0 to 100, then 100 to 200, 200 to बेटा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज क्या आ रही हैं? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज क्या आ रही हैं? पहला 12 माइनस 0 12, 18, 35। करो बेटा करो, बाकी जनता कॉपी मारने की लिख डालेगी। करो तुम करो, शाबाश शाबाश।
बेटा फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करने में कोई तकलीफ? अरे बेटा बोलो ना यार। और लेस देन में पहला वाला क्लास कौन सा बनेगा वो समझ में आला? बेटा लेस देन में पहला वाला क्लास कौन सा बनेगा वो समझ में आया? अब जरा हाथ ऊपर, मेरे को सम में ढूंढना क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बेटा वी आर सपोज्ड टू फाइंड CV, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। व्हाट्स द फार्मूला? S upon x bar into 100। क्या ना स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढना आता है? x बार ढूंढना आता है? अभी करेंगे ये सम, चालू करो। डू इट राइट नाउ। बेटा दिस इज द लास्ट सम फॉर टुडे। Tomorrow please don't be absent. I'm going to start with a very important topic, and if time permits tomorrow the chapter will be over. Okay, start, continue the sum. Come on, CV ढूंढना है। S upon x bar into 100। बेबी बंद कर दीजिए।